ناظرین آداب، ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات، میں ہوں سید احمد جیلانی۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ وقف املاک کے تحفظ کے لیے وقف ایکویشن بل کو دی جائے گی ترجیح، مرکزی وزیر اقلیتی امور نجمہ ہپتاللہ کا بیان۔ اقلیتوں کے موقع پر ریزرویشن کی مخالفت پر مسلم تنظیموں کے مرکزی وزیر کا پتلا نظر آتش، نجمہ ہپتاللہ نے دی اپنے بیان پر وضاحت۔ مسلم ووٹس کے نہ ملنے سے متعلق سوال پر اکھلیش یادو ہوئے برہم، کہا سیکولر ہونا مشکل اور فرقہ پرست ہونا آسان۔ اور مدرسہ بورڈ کے امتحان فارمز میں بدعنوانی کا معاملہ، اتر پردیش مدرسہ بورڈ کے رجسٹرار سے طلب کی گئی وضاحت۔ اور پہلے خاص بات کی بڑی خبر۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور نجمہ ہپتاللہ نے اوقاف کے تحفظ کو اپنی ترجیحات قرار دیا ہے۔ دہلی میں درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے آئی مرکزی وزیر نے کہا کہ وہ وقف ایکویشن بل لانے کی کوشش کریں گی۔ مرکزی وزیر نجمہ ہپتاللہ چارج سنبھالنے کے بعد درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانے پر پہنچی۔ مرکزی وزیر نے خواجہ امیر خسرو اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزاروں پر گل پوشی کی اور چادر چڑھا کر دعائیں مانگی۔ بی جے پی کے اقلیتی شعبے کے افراد کے ہمراہ آئیں مرکزی وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ اوقاف کے تحفظ کے لیے وقف ایوکشن بل ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ نریندر مودی جی کی سرکار تو بہت ہی کلیئر ہے، ان باتوں پر بہت ہی صاف ہے کہ مسلمانوں کو جتنے مسائل ہیں تو مسائل ان کے ڈیولپمنٹ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ان کے وکاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان کا ایک وکاس ہو ایکسکلوسو وکاس نہ ہو بلکہ انکلوسو وکاس ہو، جس میں سب شامل ہو، سب کا وکاس، سب کا ساتھ۔ مرکزی وزیر نے اس موقع پر دستور کے حوالے سے مسلمانوں کو ریزرویشن دیے جانے کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سرکار مسلمانوں کی تعلیم اور یونیورسٹیوں کے معاملے میں بھرپور مدد کرے گی۔ یونیورسٹی اور ایجوکیشن کے مسئلے پہ تو جہاں تک بھی ہم جا سکیں گے جائیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اور ریزرویشن کا تعلق سے جب کانسٹیٹیوشن الاؤ نہیں کرتا تو ہم قانون کے دائرے سے باہر تو کام کر نہیں سکتے۔ قانون کا جو ہمارا سمویدھان ہے، سمویدھان کے اندر ہی رہ کے کام کرنا ہوتا ہے ہر چیز کا۔ سارا ڈیولپمنٹ بھی قانون کے دائرے کے اندر ہی رہ کے ہوگا، اور وہ قانون میں جو قانون کے اندر افرمیٹو ایکشن کے بارے میں بات کری ہے مائنورٹی کو لے کے، وہ تو اسی دائرے میں کام کریں گے۔ سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان کی کوششوں سے وقف ترمیمی بل 2013 کو پارلیمنٹ سے منظوری مل گئی تھی، تاہم اوقاف پر قبضوں کے لیے بنایا گیا وقف ایوکشن بل اختلاف اور اعتراضات کے بعد سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ کمیٹی کی رپورٹ کے بعد اس کا مستقبل طے ہوگا۔ ETV نیوز دہلی۔ مسلمانوں کو اقلیت قرار نہ دینے اور ریزرویشن نہ دینے کا بیان مرکزی وزیر اقلیتی امور نجمہ ہپتاللہ کو بھاری پڑ گیا ہے۔ دہلی میں مسلم تنظیموں نے نجمہ ہپتاللہ کی جانب سے آئے اس بیان پر احتجاج کیا اور ان کا علامتی پتلا نظر آتش کرتے ہوئے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے نجمہ ہپتاللہ کو وزارت سے ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتی درجہ ختم کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ جیسے اداروں کو مسلمانوں سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک طرف تو کہا کہ مسلمانوں کو مائنورٹی کریکٹر ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ مائنورٹی نہیں ہے، دوسری طرف انہوں نے جو پرانی گورنمنٹ کی سفارشیں تھی 4% نوکریوں کی، وہ انہوں نے فوراً اس کو رد کر دیا۔ تو اس پوری چیز کو آپ اگر دیکھیں تو یہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ سگیا گیا کسی نے آ کے اپنے بڑھاپے میں اسٹیٹمنٹ دے دیا، یہ وہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کو اس منسٹری میں لایا گیا، اس سے یہ اسٹیٹمنٹ دلوانے کے لیے۔ اور ان کی سازش یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اب بھی اس کو نہیں جاگے اور اس کے خلاف ہم نے احتجاج نہیں کیے تو یہ کل اس کو نکال بھی دیں گے۔
इसीलिए हमने इस चीज का यहाँ पर यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने और बाकी इंडियन नेशनल लीग एसडीपीआई ने इस चीज का यहाँ पर ये जो मुजाहरा किया गुस्से का इस चीज के लिए किया कि हम इन कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर नजमा हेप्तुल्लाह ने मुसलमानों को अक़लियत करार न देने पर शुरू हुए तनाज़े के बाद अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान नजमा हेप्तुल्लाह ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। नहीं वो अलग, वो समझी नहीं लड़की, क्योंकि मैं उर्दू में बोल रही थी और वो अंग्रेजी में लिख रही थी। मेरे कहने का मकसद था कि 6 माइनॉरिटीज हैं जिनमें मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और पारसी हैं। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है और सबसे कम तादाद सिखों की, पारसियों की है और हर एक के मसाइल अलग हैं। हम एक कोई ब्लैंकेट प्रोग्राम नहीं बना सकते जो सब पे लागू हो। कि मेरा क्या मकसद था कि मुसलमान एक ज्यादा तादाद में, तो उनके मसले भी उतने ही अलग अलग तरह के हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की यूपी इकाई ने आज लखनऊ में यूपी असेंबली के सामने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का पुतला नजर आतिश किया। मंच के कारकुनों ने दफा 370 से मुतल्लिक उमर अब्दुल्ला के बयानात के खिलाफ नारेबाजी की। मंच के कन्वेनर ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला को बरतरफ करने की मांग करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में बीजेपी के मकामी कारकुनों ने भी शिरकत की। दो दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि कश्मीर धारा 370 यदि अलग समाप्त कर दी जाएगी तो कश्मीर भारत में नहीं रहेगा। इस बयान के ऊपर इन्होंने जो ये विवादित बयान दिया है, इस बयान के ऊपर हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं ने आज उनका पुतला दहन का कार्यक्रम किया है और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। जबकि कश्मीर के सदन में 3 और 4 धारा 3 और 4 के तहत ये हो गया था, साबित वहां पर पारित हो गया था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उत्तर पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। यदि कोई देश उसके ऊपर अपना हक जताता है तो भारत उसके ऊपर आक्रमण करेगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने फरकापरस्ती के मामले में मीडिया को अपनी तरफ सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कानपुर के निजी दौरे पर आए वज़ीर आला अखिलेश यादव मीडिया के सवालों पर भड़क गए। जब उनसे सवाल किया गया कि लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के रिवायती वोट उनकी पार्टी को क्यों नहीं मिले, तो अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह के सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही क्यों पूछे जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज के हालात में सेकुलर होना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सच्चाई क्या है ये मीडिया अच्छी तरह जानता है, लेकिन इनको मंजर-ए-आम पर नहीं लाया जाता। अखिलेश यादव ने कहा कि इस मसले पर तफसीली जवाब चंद महीने बाद देंगे। ये ऐसा सवाल पूछते हो, ये इसलिए पूछते हो कि अब 6 महीना मत बोलने दो हमें, 6 महीना मत बुलाइए। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का है, मैंने चुनाव के समय कहा था कि आज कम्युनल होना आसान है, सेकुलर होना मुश्किल है। सेकुलर होंगे अगर आप तो आपसे सवाल करेंगे लोग, जैसा सवाल आप पूछ रहे हो, और कम्युनल हो गए तो आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। कभी कम्युनल लोगों से आपने सवाल पूछा इस तरह का? कभी कम्युनल लोगों से भी सवाल पूछना। और जमीन की बात आप भी जानते हो, आप बोलना नहीं चाहते। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के रजिस्ट्रार से इम्तिहान फार्मों में बेज़ाब्तगी के सिलसिले में जवाब तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत अक़लियती उमूर के दफ्तर को मिली शिकायत की बुनियाद पर रजिस्ट्रार से जवाब मांगा गया है। इम्तिहान फॉर्म जमा करने में बेज़ाब्तगी के अलावा
बोर्ड के हालिया इम्तिहानात में नकल की शिकायतें भी सामने आई हैं। इम्तिहानी मराकज बनाने में भी बदअमरानी की इतलात मौसूल हुई हैं। बोर्ड के रजिस्ट्रार इकबाल मसूदी को 3 जून तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया गया है, लेकिन वो जवाब देने के बजाय छुट्टी पर चले गए हैं। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने ईटीवी से फोन पर बात करते हुए जवाब तलबी की तस्दीक की है। उनके मुताबिक इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई हो सकती है। बोर्ड के चेयरमैन ने पूरे मामले के बारे में लाइलमी का इजहार करते हुए इस पर रद्दअमल जाहिर करने से इनकार कर दिया। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लखनऊ सेंटर में एमए अरबी कोर्स को साल बंद कर दिया गया है। सेंटर इंचार्ज के मुताबिक मानू ने इसी साल नदवतुल उलमा और दीगर मदारिस की असनाद को एमए अरबी में दाखिले के लिए मजाज करार दिया है। दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा की तादाद का अंदाजा किए बिना कोर्स बंद करना मुनासिब नहीं है। पेश लखनऊ से इरफान अली की खास रिपोर्ट। मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के लखनऊ सेंटर से एमए सतह के 4 कोर्स चलाए जाते थे, लेकिन इस साल उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में दाखिले लिए जा रहे हैं। अरबी में तलबा की तादाद कम बताकर कोर्स मुअत्तल कर दिया गया है। सेंटर इंचार्ज के मुताबिक पिछले सालों में अरबी में दाखिले कम हो पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह मदारिस के तलबा को मौका न मिलना रहा, जबकि इस साल नदवतुल उलमा समेत दीगर मदारिस की असनाद को एमए अरबी में दाखिले के लिए मजाज करार दिया गया है। ऐसे में अरबी कोर्स बंद करना मुनासिब नहीं लगता। हाँ, अरबी का कोर्स ब्रेक इस साल कर दिया गया है हमारे यहाँ, क्योंकि पिछले 3 साल से हमारे यहाँ अरबिक में एनरोलमेंट बहुत कम था। 3 और 4 ही स्टूडेंट्स एडमिशन ले पा रहे थे। एक वजह ये रही, और दूसरी वजह जो मेरे नजदीक है वो ये थी कि इससे पहले नदवा को अप्रूव नहीं कर रखा था। इस साल उन लोगों ने नदवा को अप्रूव तो कर दिया और कई मदरसे भी अप्रूव करे, लेकिन हमारी लखनऊ कैंपस की बदकिस्मती ये समझ लीजिए कि उन्होंने यहाँ पर अरबिक को ब्रेक दे दिया है। लखनऊ सेंटर में अरबी के 2 असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद हैं। सेंटर की लाइब्रेरी में लाखों रुपए की अरबी किताबें आई हैं। ऐसे में अरबी कोर्स का बंद या मुअत्तल करना समझ से परे है। सेंटर इंचार्ज वसीम बेगम के मुताबिक वो एमए अरबी में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा का पूरा रिकॉर्ड जमा कर रही हैं और जल्द यूनिवर्सिटी इंतजामिया से कोर्स बहाल करने के लिए रुजू करेंगी, क्योंकि हमारे पास अभी बच्चों की एप्लीकेशंस भी आ रही हैं और बच्चे आ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए बाकायदा। उसमें नदवा के बच्चे भी शामिल हैं, दूसरे कॉलेजेस के भी शामिल हैं। तो हमने उनका बाकायदा एनरोलमेंट करना अपने रजिस्टर में शुरू कर दिया। उस हमको पूरे अरेंजमेंट्स को, जितने बच्चे हमारे एडमिशन लेना चाहते हैं उन सबकी तफसीलात हम हैदराबाद भेजेंगे अपनी दरखास्त के साथ। बंद नहीं कर दिया गया, फिल वक्त के लिए ब्रेक किया गया है यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी की वजह से, लेकिन अगर बंद करना मकसद नहीं है, वरना देखिए अभी हाल ही में आप पीछे देख सकते हैं लाखों रुपए की किताबें यूनिवर्सिटीज ने अरबिक की यहाँ पर मंगाई है। अगर इस तरह कुछ बात होती तो इस तरह कुछ नहीं होता। फिल वक्त के लिए क्या है, लेकिन आइंदा इसके लिए फिर चालू किया जाएगा। लखनऊ उर्दू के अलावा अरबी और फारसी का अहम मरकज है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने लखनऊ में इसी मकसद के तहत अपना सेंटर कायम किया था, लेकिन इस सेंटर में तलबा की कमी अहले इल्म के साथ लखनऊ के तालीम याफ्ता तबके के लिए लम्हे फिक्रिया है। ईटीवी न्यूज लखनऊ। मेरठ में बीएसपी के मकामी लीडर बाबर चौहान के जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक मुकदमे के सिलसिले में बाबर चौहान कई माह से जेल में कैद थे। अदालत से जमानत मिलने के बाद आज ही वो रिहा हुए थे। जेल से रिहाई के बाद बाबर चौहान अपने हामियों के साथ जुलूस की शक्ल में जा रहे थे। इस दौरान उनके हामियों ने सड़क पर खुलेआम हथियारों के साथ मुजाहरा किया, जिसकी वजह से पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करते हुए बाबर चौहान को गिरफ्तार कर लिया। बिना किसी परमिशन के असलहों के साथ में उसका प्रेशर करते हुए ये जुलूस निकाल रहे थे। इसको रोका गया था, लेकिन ये जबरदस्ती बिना परमिशन के इस तरह का प्रेशर करते हुए जुलूस निकाल रहे थे, जो अवैधानिक है, और इसी के साथ उनको अरेस्ट किया गया। मगरबी बंगाल में आज 12वीं जमात के हायर सेकेंडरी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया गया। इस साल 78.42% तलबा ने कामयाबी हासिल की है, जो पिछले 3 बरसों के मुकाबले ज्यादा है। जबकि गुज़श्ता साल लड़कियों के मुकाबले लड़के आगे रहे। रायगंज के रिहान साहा ने रियासत भर में पहला मुकाम हासिल किया, जबकि कुलदीप गुहा मुजुमदार ने 7वां और बर्दवान के शेख मोहम्मद सगीर ने
9वां मकाम हासिल किया। मुझे अपने आप से कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी इतना अच्छा हुआ। मैं सुना कि मुझे 7th रैंक मिला है वेस्ट बंगाल स्टेट में। टीचर ने मुझे फोन करके कहा और मैं बहुत ही खुश था। आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ आई वाज देन फीलिंग। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में रोजनामा सियासत के तहत 31 मई यानी कल रात कुल हिंद मुशायरा मुनक्किद हो रहा है। बेंगलुरु पैलेस में हो रहे इस मुशायरे के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। मुशायरे की सदारत कर्नाटक के वजीर इत्तलात आम्मा आर रोशन बेग करेंगे, जबकि मारूफ शायर अनवर जलालपुरी निजामत के फराइज अंजाम देंगे। राहत इंदौरी, मंजर भोपाली, अल्ताफ जिया, रईस अंसारी, राजेश रेड्डी, लता हया समेत दीगर अहम शोरा इस मुशायरे में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर इत्तलात आम्मा व हज और रोजनामा सियासत बेंगलुरु के सरपरस्त आर रोशन बेग ने कहा कि मुशायरा उर्दू तहजीब और तमद्दुन का हिस्सा है। बेंगलुरु के रोजनामा सियासत के तहत माजी में भी मुशायरे और कव्वाली के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बेंगलुरु पैलेस में 31 मई को मुशायरा मुनक्किद हो रहा है। ये जो कुल हिंद मुशायरा बेंगलोर शहर में 31 मई की रात को इंशाअल्लाह 9 बजे मुनक्किद होगा और इस मुशायरे में हिंदुस्तान के टॉप जो शोरा इकराम हैं उनको मदऊ किया गया है। तो दरअसल एक मुशायरा करके मुशायरा हमारे तहजीब और तमद्दुन का एक हिस्सा है। 2 जून को रियासत आंध्र प्रदेश से बाकायदा सरकारी तौर पर तेलंगाना अलहदा हो जाएगा। इस सिलसिले में सरकारी लोगो भी जारी कर दिया गया है। इस लोगो के अंदरूनी दायरे में अशोक का एम्बलम, हैदराबाद की शान, चार मीनार, काकतिया का कलाथोरणम शामिल है। इस लोगो में इन सब के अलावा अहम चीज अंग्रेजी तेलुगु के अलावा उर्दू तहरीर को शामिल किया गया है। लोगो के दायरे के बाहरी हिस्से में हिंदी भी तहरीर है। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल नामजद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से एमआईएम सदर वर्क पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात करते हुए तेलुगु के साथ उर्दू को रियासत तेलंगाना की मुश्तरका पहली सरकारी जबान का दर्जा देने का मुतालबा किया था। हुकूमत महाराष्ट्र के ज़ेर-ए-इत्तेमाम चलने वाले मौलाना आजाद मालियाती कारपोरेशन ने 12 साल बाद कर्ज की तकसीम में शफाफियत लाते हुए आज कुरानंदाजी के जरिए 4 अजला के 1227 दरख्वास्त कुनंदगान को 5 करोड़ 10 लाख रुपए के बिजनेस लोन की तकसीम की है। बिजनेस लोन के जरिए फी शख्स को 50,000 रुपए की रकम दी गई, जबकि 7 अजला के 6,927 अफराद में बिना कुरानंदाजी 11 करोड़ 40 लाख रुपए तकसीम किए गए। जिन अजला में बिना कुरानंदाजी कर्ज तकसीम किया गया वहां दरख्वास्त कुनंदगान की तादाद कोटे से कम थी। कारपोरेशन का कहना है कि कर्ज की तकसीम हर जिले की अकलियती आबादी के तनासुब से अमल में आई है। जो है कि 1.5 महीने की उर्दू जबान अदब में कसरत के साथ किताबें शाये हो रही है, लेकिन क़ारीन की तादाद में बतदरीज कमी आ रही है। नए क़ारीन को उर्दू अदब की जानिब मायल करना वक्त की अहम जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार बेंगलुरु में किताबों की रस्म इजराई की तकरीब में मुकर्रिरीन ने किया। बेंगलुरु में अंजुमन तरक्की उर्दू और कर्नाटक उर्दू अकादमी के इश्तराक से मुनक्किदा तकरीब में किताबों के इजरा के साथ उर्दू जबान और अदब को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली गई। हमीदा शाह कॉम्प्लेक्स के उर्दू हॉल में मुनक्किदा इस तकरीब में प्रोफेसर नजीर अहमद लोहानी की खुदनविश्त, यादों की महक और खलील फतह की तस्नीफ शाह अबुल हसन अदीब फन और शख्सियत का इजरा अमल में आया। इस मौके पर बीबीसी से वाबस्ता सीनियर सहाफी मकबूल अहमद सिराज ने कहा कि मुसलमानों में कुतुब बीनी और कुतुब खरीदने का शौक कम होता जा रहा है। नौजवान नस्ल में कहानियों, अफसानों, खुदनविश्त और दीगर अदबी किताबों के मुताले का ज़ौक़ खत्म होता जा रहा है।
तकरीब में कर्नाटक उर्दू अकादमी के साबिक रजिस्ट्रार रहमतुल हक ने कहा कि अकादमी ने मुफ्त किताबें तकसीम करने के लिए ऐलान जारी किया था, बावजूद इसके किताबें हासिल करने के लिए कोई आगे नहीं आया। इस मौके पर कर्नाटक रियासत में कन्नड़ जुबान में इब्तदाई तालीम को लाजमी करवाने की रियासती हुकूमत की कोशिशों की मजम्मत की गई। उर्दू अदीबों और दानिश्वरों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया है, बावजूद इसके हुकूमत अदालत से नजरसानी की दरख्वास्त करना चाहती है। इजलास में जोर दिया गया कि उर्दूदां तबका हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करे। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 28 रजब से शुरू हुए 3 रोजा प्रोग्राम के दौरान जुलूस अमारी बरामद हुआ। इस मौके पर जारी ने नहर ख्वानी के साथ जुलूस में शिरकत की। मातमी अंजुमन सिपाही हुसैनी के ज़ेर एहतमाम मुनक्कद जुलूस अमारी में दीगर इलाकों से भी अकीदतमंदों ने शिरकत की। शुमाली हिंद में पड़ने वाली शदीद गर्मी ने गुज़श्ता कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूपी में बिजली की शदीद किल्लत ने सूरत-हाल को मजीद तकलीफदेह बना दिया है। बिजली के शदीद बहरान ने फ्रिज के ठंडे पानी को भी गर्म कर दिया है। ऐसे में लोग मुतबादिल के तौर पर मिट्टी से बने रिवायती घरों और सुराही का सहारा ले रहे हैं। बढ़ती गर्मी और कम होती बिजली ने मिट्टी के घरों की मांग में इजाफा कर दिया है। पेश खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश इन दिनों शदीद गर्मी की जद में है। दर्जा हरारत 44 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में रियासत भर में बिजली के शदीद बहरान ने सूरत-हाल को और भी ज्यादा तकलीफदेह बना दिया। सड़क किनारे फरोख्त होने वाले मिट्टी के ये घड़े पहले गरीबों के लिए हुआ करते थे, लेकिन आजकल इन घड़ों की खूब मांग है। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी ठंडे पानी के लिए मिट्टी के इन रिवायती घड़ों और सुराही का सहारा ले रहे हैं। मटके का पानी तो भाई बहुत शुद्ध होता है और पानी इससे अच्छा तो है नहीं। फ्रिज बत्ती आती नहीं ना, पानी एकदम गर्म हो जाता है और डायरेक्ट पियो तो सर में दर्द होने लगता है। इसलिए हम लोग ने जो है मटका जो है ला के रख लिया, वही शुद्ध है और बढ़िया पानी है। पानी मटके का तो सबसे बेस्ट है, ये शुरू से प्राचीन टाइम से चला आ रहा है। तो इस वक्त बत्ती की इतनी प्रॉब्लम है कि फ्रिज में पानी ठंडा हो ही नहीं रहा है। इस वक्त सबसे नॉर्मल और अच्छा पानी सुराही मटके का पानी। समाज से अलग थलग रहने वाले कुम्हार बरादरी के लोगों के लिए ये गर्मी किसी नेमत से कम नहीं। यही वजह है कि मिट्टी के घड़े बनाने वाले खानदान काम में तेजी से जुटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रियासत में मिट्टी की खुदाई पर लगी पाबंदियों ने इनके लिए मुश्किलें पैदा कर दी है। मिट्टी के संबंध में पिछले वर्ष तो सही रहा, लेकिन जब ये सरकार आई है मिट्टी पे प्रतिबंध लगा दिया, मिट्टी खनन में। और मिट्टी शहर में देहातों में हर जगह इसका प्रतिबंध लगा हुआ, जिससे मिट्टी मिल नहीं पा रही है। महंगी मिलती है और चोरी लुका भी मिलती है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने आम लोगों को मिट्टी के घरों की तरफ फिर से लौटने पर मजबूर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मिट्टी के बर्तनों का कारोबार करने वाले कुम्हार बिरादरी इस सूरत-हाल से माली फायदा हासिल कर रही है। बिजली की किल्लत और शदीद गर्मी की वजह से शहर में रहने वाले लोगों को एक बार फिर पुराने जमाने के मिट्टी के घरों की खरीदारी करते देखना एक खुशगवार एहसास भी है। कानपुर।
सबक कांस्टेबल अब्दुल कबीर के इंतकाल की खबर अफवाह साबित हुई। अब्दुल कबीर जो सजा मुकम्मल होने के बावजूद जेल की सहुलतें बर्दाश्त कर रहे हैं कि इंतकाल की अफवाह से शहर हैदराबाद में तशवीश देखी गई। इंतकाल की खबर उस वक्त गलत साबित हुई जब MIM लीडर रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने अब्दुल कबीर से गांधी अस्पताल में मुलाकात की, जिसके बाद शहर हैदराबाद की तशवीश खत्म हुई। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।